جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ وقاص سید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ٹائم میں موجود ہوں جی استاد حافظ نعیم ورلڈ چیمپئن کی چھت پر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پاکستان کے نامور استاد جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، استاد شیخ اطہر اور حافظ نعیم ورلڈ چیمپئن صاحب، اور شہباز نت، استاد چودھری شہباز نت صاحب۔ اور آج کچھ اپنا استاد شیخ اطہر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے، اس حوالے سے ان کے ساتھ موجود ہیں جی ہم۔ جی السلام علیکم شیخ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ شکر الحمدللہ، بڑا اللہ کا احسان، ٹھیک ہے۔ اور طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ ہاں ماشاءاللہ ٹھیک ہے، روزے کیسے جا رہے ہیں؟ روزے ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ چلے جی، اللہ پاک خیر رکھے۔ اچھا، جیسا کہ لاہور میں گرما گرمی چل رہی ہے، اس حوالے سے آج پھر میرے خیال سے آپ کچھ اپنا موقع بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں یہ موقع بیان کرنا چاہتا ہوں، میں نے پہلے بھی حافظ صاحب سے کہا تھا کہ آپ کسی کام میں جلدی نہ کیا کریں۔ جی حافظ صاحب نے ایک چھوٹی سی غلطی کی ہے، جی ہاں، لیکن اس کا خرمادہ زیادہ بڑا نظر آیا، ہاں ہاں، لوگوں کو برا لگا، اور ان کی آڑ میں کئی لوگوں نے فائدے بھی لیے ہیں ٹھیک ہے۔ جن کا کوئی ان بیان سے تعلق بھی نہیں تھا۔ جیسے کہ آپ استاد ندیم اللہ تارا والے، جی جی وہ ہمارے بھائی ہیں، شوقین ہیں، انہوں نے کئی دفعہ ہار جیت دیکھی ہوئی ہے، وہ بھی مقابلوں سے بھاگ گئے ہیں، حالانکہ اس ایشو سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہی کوئی حافظ صاحب نے ان سے پیسے لینے ہیں اور نہ ہی ان کے کوئی دینے ہیں، نہ ہی انہوں نے حافظ صاحب کو کچھ پیسے دینے ہیں، ہاں، اور نہ ہی کسی کپ کے پیسے حافظ صاحب نے ان سے لینے ہیں۔ ہاں، تو انہوں نے بھی اپنے مقابلے کینسل کر دیے، حالانکہ کوئی اس طرح کا اصول نہیں ہے، وہ مقابلے انشاءاللہ اڑنے چاہیے۔ جی میں امید کرتا ہوں کہ وہ مقابلے آگے ضرور اڑیں گے۔ ہاں جی، اور اس نہیں کے علاوہ کپ جی کے حوالے سے، کپ تو سب کی اپنی کوشش ہوتی ہے، وہ امید ہے اللہ کے گھر میں یہ کپ اڑتا ہی رہے گا۔ ہاں ہاں، جہاں تک اختلاف کا تعلق تھا، جی جی، وہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ نے اتنا بڑا جواب دیا ہے تو آپ کی بھی غلطی ہے۔ ہاں، حافظ صاحب کی اتنی بڑی غلطی نہیں تھی، کیونکہ حافظ صاحب کا کوئی اتنا تجربہ نہیں ہے۔ ہاں ہاں ہاں، آپ تو بڑے تجربہ کار تھے سارے دوست، جی میرے لیے تو قابل احترام ہے سب، تو یہ اچھا نہیں ہوا، ہاں ہاں، جو کچھ بھی ہوا۔ جی کب تو انشاءاللہ اڑے گا آگے بھی۔ میں خالی کا خود بھی اپنے شاگردوں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھ سے بھی کوئی اچھی کوشش کرے تو آپ اس کا ضرور ساتھ دیجیے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، یہ کب تو ہمارے شو کا حسن ہے، اگر اس طرح کا لیٹ کوتاہیاں ہوتی جائیں گی جی تو آہستہ آہستہ یہ شو ختم ہوتا جائے گا۔ بالکل میں اپنے شاگردوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ کوئی اچھا کپ اڑے تو اس میں آپ ضرور شامل ہو، ٹھیک ہو گیا۔ چاہے وہ کسی کا بھی ہو، چاہے ہماری ان سے بازیاں اڑتی ہوں یا ہمارا مخالف بھی ہو، جو اچھا کر رہا ہو نا اس کا ساتھ ضرور دے۔ ٹھیک امید ہے حافظ صاحب بھی اچھا کریں گے، اپنی جو چھوٹی موٹی انہوں نے غلطی کی ہے اس سے سیکھیں گے سبق، جی۔ اور آئندہ کوشش کریں گے کہ وہ نہ یہ غلطیاں کریں۔ نہیں شیخ صاحب، اپنا حافظ صاحب نے کپ کے حوالے سے کہا تھا کہ جی کہ یہ جو ہے ہم کپ میں حصہ نہیں لیں گے تو بازیاں مثلاً کہ کپ سے ہمارا بائی کوڈ ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے، باقی جو جتنے بھی کپ ہو رہے تھے جی، اس کو دیکھا جائے اور بازیوں کو دیکھا جائے، بازیوں کو تو بھی میرے خیال سے یہ اپنا بازیوں کی تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ بازیوں کا بھی ختم کرنا یہ کہ صحیح ہے کہ فیصلہ کہ غلط ہے۔ نہیں، ان کا مقابلے کہ ان کا حافظ صاحب سے کوئی رفڑ پڑا ہو تب وہ کہہ سکتے ہیں، ہاں حافظ صاحب کے مقابلے تو اڑ رہے ہیں، جی مقابلوں کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، چاہے وہ استاد بلال سے لگے ہوں، بلال صاحب اپنے بھائی ہیں، وہ ان کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہے تو وہ بتائیں۔ جی ندیم اللہ تارا والے ہیں استاد، ان کا کوئی نہیں ہے ایشو بازی کا، استاد ادر کلب والے ہیں، ان کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے بازیوں کا۔ ہاں یہ تو کپ کی بات تھی، کپ میں انہوں نے انعامی رقم لینی تھی، جی اس لیے انہوں نے غصہ نکالا ہے۔ وہ بھی میں نے حافظ صاحب کو سمجھایا کہ وہ آئندہ احتیاط کریں، جی اور میرے سب دوستوں سے اپیل ہے کہ وہ اپنے مقابلے جاری رکھیں۔ ٹھیک ہاں، کوئی ایسی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوا، ہاں ہاں، کہ صحیح، مقابلے بند کیے مطلب جائیں۔ آپ کہنا چاہ رہے کہ میرے جتنے بھی شاگرد ہیں وہ تمام کپوں میں حصہ لیں، کسی کو کوئی آپ نے وہ جو روک اچھا ٹوک کر رہا نہیں ہے ہے۔ اس میں حصہ لیں، ہاں میں تو یہ کہنا، اور مقابلوں کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ حافظ صاحب سے مقابلوں میں اڑے۔ ہاں ہاں ہاں، اگر کوئی
बात है तो वो बात करें, भागने की बात तो नहीं है बिल्कुल। कि आप मुकाबले तय, थड़ेबाजी के मुकाबले तय करके आप भाग जाएं। हाँ। नहीं, अगर थड़े के अपना लाहौर के कानून के मुताबिक अगर देखा जाए, अगर थड़े की बाजी लगी हो, अगर कोई बीच में से निकलता है कि यार मैं ये बाजी खत्म करता हूँ, तो अगर वो 4 साल की 3 साल की अगर बाजी तय है तो वो 3 साल की रकम दे सकता है। इनामी रकम वो उससे देगा। मैंने नहीं उड़ानी, वो इनामी रकम दे दें उनको। हाँ जी, जब तय की थी उस वक्त नहीं कोई आपने शर्त रखी थी जी। आप लोग खुद ही आए थे उनसे तय करने मुकाबले। क्या आप साहब उनकी तरफ गए हैं तो वो भी मुझे बताएं। जी जी, हाँ जी, ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ और कहना चाहे? नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि सारे मिलजुल के शौक करें और शौक को कामयाबी की तरफ ले जाएं। हाँ जहाँ तक शागिर्दी का ताल्लुक है, हाफिज साहब को मैंने कहा जी। कि जो आपको अच्छा लगे आप उनसे मुंह भरवाई कर लें, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ हाँ, शौक इंशाल्लाह जारी सारी रहेगा। मेरी दुआएं हाफिज साहब के साथ हैं और मैं आइंदा शौक में इनका भरपूर साथ देता रहूंगा। ठीक। हाँ जी, चल, बहुत शुक्रिया जी। जी हमारे साथ मौजूद है जी उस्ताद शेख अतर साहब, और अब हम चलते हैं जी उस्ताद वर्ल्ड चैंपियन हाफिज नईम की तरफ। नईम भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, वो मैं जो उस्ताद जी ने बातें कर दी हैं, हाँ तो मैं तो उनके साथ हूँ हमेशा। हमने इनसे सीखा है। जी। हम बच्चे हैं, ठीक है जी, गलतियां सभी से हो सकती हैं। हर बंदे के अंदर खूबियां भी खामियां भी है। वो उस्ताद जी ने मुझसे नाराज भी हुए हैं, तो तुमने जल्दबाजी की है। मैं को उस्ताद जी उन्होंने सानू पेपर नहीं दिता। हाँ, नहीं भाई, इसकी मैं आपकी बात करना चाहूंगा कि मसलन ये इतने जज्बात में आगे एकदम आपने ये जो मसलन इकदाम उठाया, इसकी क्या वजह थी कि पेपर ना शायद अपने साथ में बैठने ये की? थी कि हमने दोपहर को ना हाफिज मानुल्लाह भाई को कहा 4-5 बजे, फिर रात को जो मुंसफियां लगेंगी ना, जी। तो आप ना हाजी तावला साहब को कहेंगे ना, तो मुंसफियां लग जाएंगी, वो पेपर हमें दे दें। जी ठीक है, वो अगर हमें पेपर दे देते तो उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत ही बढ़नी थी बिल्कुल। हमारी नजरों में। तो रिस्पेक्ट तो अभी भी है, वो बड़े हैं, हमने किसी के साथ हमसे जो बड़े, हमने उनकी रिस्पेक्ट ही करनी है। एक पेपर का मसला था, इन्होंने वहां पे बैठ के सबने मिलके ये इशू क्रिएट किया कि ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए। इन्होंने ऐसा काम किया, इन्होंने अगले दिन शाम तक लोगों को फोन करके मुंसफियां बताई हैं। हाँ ठीक है, हमारे कप उड़ ही गया ना। चलिए, जिस तरह का भी उड़ा, गलत उड़ा है, अच्छा उड़ा है, मंदा उड़ा है, हमने भी रिजल्ट अनाउंस कर दिया। आपने पूरी भरपूर मेहनत की है विकास भाई। बिल्कुल। लेकिन कहने का मकसद ये था, बात इतनी लंबी है नहीं थी जितनी लंबी की है। अभी शेख साहब ने एक बात कही है, मैं मुल्ला जी आपके साथ मेरी बाजियां तय हुई हैं, ठीक है। मेरी बात का बुरा लगे किसी को, मेरा मुल्ला के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरा बिलाल के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरा अजहर के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारा इख्तलाफ हुआ है एक पेपर के। उस्ताद जी, पेपर तो होया सी, ਅਸੀਂ पेपर ਮੰਗਿਆ, उन्होंने पेपर नहीं दिता। मैं उतो जरा ना वीडियो बयान जारी करता, उससे मैं पैसे मांग ले। अगर फर्ज करो मैंने अपने पैसे भी मांग लिए हैं, तो क्या मैं पैसे मांगे तो मैं बुरा बन जाऊंगा? इसका मतलब है, मैंने आगे भी कहा था मुझे कुछ चुदराहट का शौक नहीं है, ना मैं ये किसी किस्म की चुदराहट लेना चाहता हूँ। लेकिन इन्होंने जो किया गलत किया है। ठीक है मुल्ला जी, आपको पैगाम है मेरा, मैंने आपको भागने नहीं देना। जी। जब तक आप मेरे सामने आके नहीं बैठेंगे, आप मेरे सामने आके मुझे कह देंगे मैंने बाजी नहीं उड़ानी, आपकी मेरी बाजियां खत्म हो जाएंगी। इस तरह मैंने भागने नहीं देना। जिस तरह बिलाल भाई मुझे कह देंगे, देखें वो हमारे भाई हैं, सारे भाई हैं जो शो कर रहे हैं, मुल्ला भी हमारा भाई है, उस्ताद है। ये साहब मुझे मेरे घर आ जाए, आके कह दें यार असी इतना शौक नहीं करना आगो, ठीक है, या हमने आधी बाजियां देनी है। मेरे साथ जो नहीं उड़ता, मैं पैसों के पीछे नहीं जाऊंगा। जो मेरे साथ नहीं उड़ता, मैं उससे आधी बाजियां भी नहीं लेता। ठीक है बिलाल भाई, ठीक है, मेरा उनके साथ एक किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं था, लेकिन इन सब ने जज्बाती होके इनमें से किसी ने इनको नहीं समझाया। देखिए शेख साहब बैठे हुए ना, इन्होंने आगे मुझे समझाया, इन्होंने कहा आप सब की गलती है, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, ये सारे बड़े बड़े 40-40 साल पुराने, 30-30 साल पुराने उस्ताद बैठ गए, इन्होंने आगे जाके सारा जो ना प्रोपेगेंडा मेरे ऊपर ही गोल दिया। और सबसे मेरा प्यारा दोस्त गुलाम हुर्रमान, जिसने पाकिस्तान का सबसे बड़ा इनाम रखा हुआ था, ठीक है, बच्चा इनाम, और उसका बोलने का लहजा तरीका, मैं कहता हूँ चले जी वो नहीं, बड़े वो नफीस इंसान है, बड़े अच्छे भाई हैं, बस हो जाता जज्बात में आके। वो ज्यादा ही नफीस उस दिन हो गए थे। जी जी। कि जी मैं वो बोलने का लहजा, मेरे पास वो उनका क्लिप है, चले छोड़े इन बातों को, चलो कोई गुस्से में बोल गया, कोई प्यार में बोल गया। तीसरे की रात थी उस दिन, इनको ना थोड़ा सा देखना चाहिए था
ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਬ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਬਾतें आ रही हैं, कई बंदे मुझे कह रहे हैं कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कटहरे च लेके आओ, ये गलत है, ये बाजी उड़ेगी, इन्होंने बाजी मुझसे लगाई है, जो बाजी नहीं उड़ाएगा, इस तरह नहीं उड़ाएगा, उसको पूरी बाजी पड़ती जाएगी। हाँ, किसी ने नहीं उड़ानी मुझे फोन करके कहते हाफिज साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शौक बराबर करना है, मैं बराबर कर दूंगा। ठीक है उस्ताद जी, इस तरह बराबर हो जाता है। ये जो आप पर्चे की बात कर रहे हैं ना, ये ताला मायूं साहब का मैंने इंटरव्यू देखा है, उसमें वादे उन्होंने किया है कि उन्होंने एक प्लानिंग के तहत आपको नहीं दिया पर्चा उन्होंने ओपन नहीं किया मुंसफियों के। आपने तो हाफिज साहब से कहा था कि आप उनको ले आए, लेकिन उन्होंने वहीं लग रहा था प्लानिंग की है, उनके इंटरव्यू यही बता रहे हैं कि उन्होंने फिर आप एक अल्लाह फर्द को मुंसफी बताई है। जी जी, अच्छा जो मुंसफी का लगा था वो नहीं उन्होंने चढ़ाया। नहीं शेख साहब, आपकी गलती है कि आप वहां गए नहीं, आपको उन्होंने बुलाया भी था वहां पे, लेकिन ये आपको काम पड़ गया, आप नहीं गए। नहीं अपना नहीं भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मैं बताता हूँ, मैं पहले दिन भी 5 घंटे लेट गया हूँ। हाँ हाँ, मैं पहले दिन में 5 घंटे लेट गया हूँ। इस बात की उन्होंने वीडियो में भी तस्दीक की है, इन्होंने मेरा 5 घंटे इंतजार किया है। बिल्कुल। उस दिन मैं बिजी था, हाँ मैंने इनको उस दिन भी बोला कि मैं मुश्किल आऊंगा रोजे के हाँ, टाइम, मैं लेट हो जाऊंगा। बिल्कुल। मैं लेट होने की वजह से मैंने हाफिज मानुल्लाह भाई को कहा, मैं कहा यार वो ना हाजी तावला साहब को कहना जब ये मुंसफियाँ लगा लेंगे ना जी, तो ये पेपर हमें दे दें ला के, हम उनके मुताबिक मुंसफियाँ लगा देंगे ला के। उसमें हमारा फायदा नहीं था, हमने लोगों के लिए आसानी करनी थी। जो मुंसफियाँ लगी हुई थी हम भी अपने कब्जे में वही मुंसफियाँ लगा देते, ताकि ज्यादा मुंसफ ना भेजने पड़ते, ताकि ज्यादा मुंसफ ना भेजने पड़ते। सिर्फ इसलिए मैं जरा बिजी था। मैं पहली जुम्मे को भी मैं इनके पास 5 घंटे लेट गया हूँ, ये 5 घंटे मेरा इंतजार करते रहे। इसी रीजन की वजह से तो मैंने कहा यार ये मेरा इंतजार ना करते रहे। मैंने ड्यूटी लगा दी कि हाजी तावला साहब वहां से जब निकलेंगे तो पेपर ले आए, वो रात को हमें दे देंगे, हम रात को आराम से बैठ के अपनी मुंसफियाँ लगा देंगे। मैं उस दिन भी बिजी था, ठीक है। लेकिन चले जो इन्होंने किया है मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, इन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया है। लेकिन मेरा किसी के साथ कोई गिला नहीं है, मेरा सिर्फ बाजियों देखे जी कप्पों में इख्तलाफ हो गया, इन्होंने हमारी एंट्री निकाल दी, हमने इनकी निकाल दी, चलो कोई बात नहीं। ये चीज साजिया चीज है ना, चलो ऐसे चलो एक मैटर हो गया ना। बाजी किस तरह कैंसिल हो सकती है? बाजी अगर कैंसिल हो सकती है, शेख साहब ने सारी जिंदगी जो है ना इस काम में रहे हैं। शेख साहब का ये चैलेंज है, ये किसी भी अपने उस्ताद को ले आए, अगर ये बाजी कैंसिल होती होगी तो हम इनके साथ बाजियां कैंसिल कर देंगे। ये हमारे साथ नहीं उड़ेंगे। हम ये अपना फैसला चेयरमैन साहब की अदालत में जी, चेयरमैन साहब के पास भी ये फैसला जाएगा, क्योंकि ये मुल्ला चेयरमैन पार्टी का मेंबर है। ये वहाँ पे चेयरमैन पार्टी के पास भी जाएगा और ये बाजी नहीं उड़ेगा, इसको पूरी पूरी बाजी देनी पड़ेगी। ये मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई मैं धमकी नहीं लगा रहा। जी जी, ये मैं आपको कह रहा हूँ, मुल्ला को पूरी बाजी देनी पड़ेगी और मैं ये इंशाल्लाह लेके भी दिखाऊंगा। और ये फैसला जो है ना चेयरमैन साहब के पास जाएगा और मुझे पता है सबसे अच्छा फैसला वो करेंगे, क्योंकि ये उनकी पार्टी का बंदा, मुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। रही बात बिलाल भाई की और अजहर भाई की, इनके साथ मेरा बिल्कुल 1% भी इख्तलाफ नहीं है। बिलाल भाई मुझे फोन करके कह दें यार हाफिज साहब असी बाजी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं उड़ना चाहते, ओके खत्म हो गई, ठीक हो गया। मुझे अजहर भी कह दे आपके साथ बाजी नहीं हमने उड़ानी, मेरी बाजी खत्म हो गई। जी ठीक है। ये मुल्ला के लिए भी है, मुल्ला मेरे पास आए, ये सब मिलके आ जाए, मुझे बुला ले, मैं चला जाऊंगा इनकी छत पे। बिल्कुल। कुछ जाने से छोटा बड़ा नहीं होता, मैं जाके साथ बैठ कर लाइव आ जाता हूँ। मुल्ला कहते जी हाफिज साहब बस हमने आपके साथ शौक नहीं करना, रीजन बता दे कि ये रीजन है। जी जी, ना हमारा कोई इनके साथ इख्तलाफ है, ना मेरा कोई पैसों का लेन देन है। ठीक है, ठीक है। बम गिरा जापान में तो नासमुल्ला गया लोरो। जी, वो पता नहीं, वो मेरी समझ से बाहर है। इतने बड़े उस्ताद हो के इनको किसी ने पीछे से बताया भी नहीं कि यार ये आप जो काम कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये जो बाजी लगी हुई ये उन्नी है, ये किस तरह कैंसिल हो सकती है? इसका मतलब है कल को जोन सा मर्जी उठ के कह दे अपने उस्ताद को कोल बिठा के साड़ियां बाजियां कैंसिल ने जी असी नहीं उड़ना खत्म। बिल्कुल। ये कौन सा पैगाम हुआ? मेरी भी बाजियां लगी हुई हैं जी। अब मेरी हैदर जो ऐसे बाजी लगी हुई है, मैं भी मुंह चुक के कहते हैदर साहब मेरी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बाजी खत्म हो गई, आप खत्म कर दिया। मैं किस तरह खत्म कर सकता मैं? जी जी, मेरी जमशेद भाई से है, याद भाई से है, वसीम भाई से है, मेरी बाजियां लगी हुई है। कल उनके मुंसफ भी आए हुए थे। कल मुंसफ भी गए हुए थे हमारे, उनके भी आए हुए थे यहाँ पे। मैं इधर बैठ के एवं मुंह उठा के कह दूं जी उनके बंदे ने फलाने ने ये बात की साड़ियां बाजियां कैंसिल है जी,
इस तरह थोड़ी कैंसिल होनी है। बिल्कुल। ये बात होनी है मेरिट पे, और इंशाल्लाह हम इनके साथ शौक करेंगे, अच्छा शौक करेंगे। पहले भी अच्छा शौक किया है, तो अल्लाह ताला इनको भी इज्जत दे, जी मेरी दुआ है। ये इसी तरह ये भी कपों में बढ़ चढ़ के साले टूर्नामेंट में फर्स्ट आए। तो बिलाल भाई से बड़े मेरी इख्तलाफ है। मेरा प्यार भी बड़ा उनके साथ, बिलाल भाई के साथ। हम दोनों एक दूसरे के साथ दिल की बातें भी कर लेते थे। लेकिन उनको ठीक है जी, उनको उन्होंने कहा मुझे स्टेज पसंद है। हम उनको हमारे काम नहीं, फिर वो इख्तलाफ नहीं हुआ, आपकी नाराजगी होगी उनके साथ? नहीं, नाराजगी भी कोई नहीं, मेरी उनके साथ कोई नाराजगी नहीं है। मेरी किसी से भी नाराजगी नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरी किसी से नाराजगी नहीं। इनके रवैयों से मेरी नाराजगी है। ठीक हो गया। इनके रवैयों से मेरी नाराजगी है। ठीक है, बात करने को ना बातें बड़ी बड़ी दूर निकल जाएंगी फिर। बिल्कुल। वो लोगों के रवैये देखे हैं, वो लोगों के रवैये देखे हैं जो मुंह पे पता क्या कहते हैं, हाफिज असी तेरे भरा वा। जिनके ऊपर आपको बड़ी उम्मीद थी। हाँ जी, जिनके ऊपर मुझे बड़ी उम्मीद थी, तो मुंह पे कहते हैं तू मेरा भरा है। तो पीछे से किरदार देखे इनके क्या है। ठीक है जी जी। चले कोई बात नहीं, ये शौक में हो जाता है, कमी पेशी हो जाती है, शौक में ऊंच नीच तो होती रहती है हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं। शहबाज भाई की तरफ आखिरी मिनट जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जोशीले उस्ताद शहबाज नाथ साहब जी, शहबाज भाई की कहना चाहोगे? कहना कुछ भी नहीं चाहिए, एडा ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪ ਵੀ ਡਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮੀ ਰਕਮ ਹੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਾਮੀ ਰਕਮ ਮੰਗਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, 27ਵੀਂ ਰਾਤ 27 ਰਾਤ ਲੈਵਲ ਕਦਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ। ਸੁਣਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ, ਦਰਸ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਸੁਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਠੀਕ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈਗੇ। ਸਹੀ। ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲੋਂ 1,50,000 ਰੁਪਇਆ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। नहीं, 1,30,000 रुपया मेरे ख्याल से 1,30,000 रुपया आपने खुद एक्स्ट्रा आपने लगाया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1,50,000 ਰੁਪਇਆ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਨਾ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਲਵਾ ਦੇਣ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੀ, ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜੀ ਬਸ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 700 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਿ ਥੜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੈਂਸਲ। ਗੱਲ ਕੱਪ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ, ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਹੋਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਨਾ ਹੋ। ਠੀਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਹੇ ਸਨ ਤੈਅ ਹੋਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਧਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੇ ਸਰ जी जी। दोस्तों, जब मुकाबले तय हुए थे तो उस वक्त भी ये देखना चाहिए था कि ये किनके शागिर्द हैं और कहाँ से इन्होंने पाग ली है। उस वक्त तो ये छोटे कबूतर परवर नजर आ रहे थे। हाँ, ये भी आपने बड़ी अच्छी वैलिड एक बात की है कि अगर जब बाजियां तय हो रही थी, जब बाजियां तय हो रही थी तो तब हाफिज साहब का ये लड्डू वाली जो पॉइंट है या शागिर्दी वाला पॉइंट है, ये तब क्यों नहीं उठाया गया? हाँ, और आगे मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि कबूतर परवरी के लिए ना, बेहतरी के लिए मेरे अपने सब दोस्तों, अपने सीनियरों को ये शौक की दावत है कि कबूतर परवरी के लिए, बेहतरी के लिए काम करें। अगर हाफिज साहब ने काप उड़ाया है कबूतर परवरी की बेहतरी के लिए जी, और मैं सब कबूतर परवर अपने छोटे और सीनियर और बड़े सबको ये मैं कहता हूँ कि जो इकदाम कबूतर परवरी के बेहतरी के लिए किया जाए उसको सब सराहें और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें जी। ये दफे भी रहेंगी तब अगर ये शौक जिंदा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं
एक तरफ मियां नदीम साहब चेयरमैन पार्टी को भी बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जी। कि उन्होंने इस इकदाम को सराहते हुए उन्होंने भी एक कैश इनाम की सूरत में बिल्कुल, कैश एंट्री बिल्कुल। की सूरत में काप उड़ा रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये कबूतर परवरी की बेहतरी है, बिल्कुल। क्योंकि ये एकदम लेट पड़ रहे थे, हाँ हाँ, तो ये जरूरी था कि कबूतर परवरी में को जिंदा रखने के लिए इस तरह के इकदाम उठाए जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही डॉक्टर है। साहब का इकदाम बेहतर है, बिल्कुल। अगर सबको बेहतर लगे तो भरपूर इसमें हिस्सा डालिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और हम चलते हैं जी, हमारे साथ मौजूद है जी अभी अभी भाई हमारे ताजा भी आए हैं, यंगस्टर हमारे बहुत ही जोशीले प्लेयर और दबंग प्लेयर, किसी भी तारीफ के मुताज नहीं, उस्ताद हाफिज अमानुल्लाह साहब। शौक से बड़ों का मुकाबला करने वाले प्लेयर हैं। बिल्कुल। छोटे शौक से ऐसे ही बड़े है। प्लेयरों का बिल्कुल बिल्कुल। मैं का तो बड़े ही जोशीले अपना दबंग से खिलाड़ी हैं जी। अपना वालेकुम सलाम अमानुल्लाह भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? शुक्र है भाईजान। सबसे पहली बात तो ये है, मैंने तो उस दिन ग्रुप में भी ये बात कही है कि इतना बड़ा इशू नहीं था, हाँ सिर्फ बात थी एक पेपर की। जी। मेरी बिल्कुल आप साहब से मेरी बात हुई थी हाँ और मेरी बात अतावला भाई से हुई थी इस बात पे कि आपने मेरे साथ जाना है, आप बड़े हैं, अगर कोई कमी पेशी होगी ना जी जी, आप साहब को अगर समझाएंगे ना, बात और अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक, ये आपने बात की ये थी, मैंने बात की थी उनसे, ठीक हो गया। और बात भी थी कि उन्होंने आना भी था, हाँ हाँ आना भी था, लेकिन वो नहीं आए, जिस वजह से वो पेपर की वजह से वो पेपर नहीं आया, तो इस चीज का आप सबको भी गुस्सा था। और इन्होंने जब ये बात की सारी, तो अगर इन्होंने एक बात की है तो इन सब जो बड़े उस्ताद हैं ये सारे बैठे हैं, इन सब ने इतनी इतनी बड़ी बातें की हैं। देखें अब शेख साहब आए हैं, बिल्कुल, शेख साहब के भी इतने ज्यादा शागिर्द हैं, बिल्कुल। ये भी तो सबको कह सकते हैं ना कि भाई तुसी भी बाइकआउट कर दो जी, बाइकआउट कर दो ये। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ शेख साहब को भी, और इनका ये बड़ापन है। ये बात इन्होंने कही है कि आप फिर भी सब में कपों में एंट्रियां करवाएं। बिल्कुल। मुझे बड़ी बात इनकी अच्छी लगी और बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के। हाँ बात ये कप तो था नया नया, और अगले दिन इनाम मिलने वाला। मुझे तो ये बात ही बड़ी अच्छी लगी सबसे पहले, तो अगले के घर इनाम जाना, बिल्कुल। ये तो छोटी बात नहीं है, आज तक ऐसा हुआ तो नहीं है। अब मैंने मसलन के उसी दिन मैंने शेख साहब से भी बात की, आप साहब से भी बात की, मेरी तुराब भाई से भी बात हुई, मेरी उस्मान जलाल से भी बात हुई है, मेरी अजहर से भी बात हुई है, उस्ताद मुल्ला से भी मेरी बात हुई है, सबसे ही होगी मतलब, तकरीबन सबसे हुई है, बट बिलाल भाई से भी नहीं हुई। अच्छा, बिलाल भाई से नहीं तो हुई। क्योंकि वो हाँ, बड़े प्यार वाले हैं, बिल्कुल मेरे ऐसे ही है, शहजादे भाई है वो भी। शहजादे भाई हैं। तो मेरा यही प्रोग्राम था कि ये यार इस बात को यहीं पे खत्म कर दिया जाए जी, इसको जिस तरह भी है बात को खत्म करके बिल्कुल। जो बाजियां बहाल है ना, इनकी बाजियां बहाल रहनी चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। बाजियां उड़नी चाहिए। ठीक है, अगर आप साहब ने ये गुस्से में बात की है, ठीक है, मैं भी नहीं कपा एंट्रियां करवाऊंगा, हाँ हाँ, ठीक है। जी जी, मैंने भी अपनी तरफ से ये बात की, मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने भी ये सोचा था मैं भी लाहौर के किसी कप में एंट्री नहीं दूंगा, हत्ता कि अपने फातेह लाहौर में भी एंट्री नहीं दूंगा, ये मैंने अपने से अच्छा, बात की थी। हाँ, सही। मैंने ये बात की थी, सिर्फ आप साहब के कप में एंट्री दूंगा, हाँ हाँ, लेकिन ये जज्बात की बात थी, बिल्कुल। ठीक है ना, हाँ, जज्बात में वक्ती आदमी तौर पे बात इंसान की, जज्बात में आ जाता है, जज्बात। बिल्कुल। लेकिन बात ये है, रात गई बात गई, बिल्कुल। मैं सब जितने भी सीनियर उस्ताद हैं, तुराब हैदर साहब हैं, उस्मान जलाल है, उस्ताद मुल्ला है, नदीम अजहर भाई हैं, अजहर भाई हैं, बिलाल भाई हैं, तावला भाई हैं साहब हैं, मैं इन सबको कहूंगा कि बात को इतना बढ़ाएं ना, इसको यहाँ पे क्लोज करें और मिल बैठ के इस शो को जो है ना बहाली के लिए बेहतरी करें, और इसको आज और कल में खत्म करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अब शेख साहब ने जो पैगाम दिया है, मैं खसूसी तौर पे इनके लिए क्लैपिंग करता हूँ जी, एक दफा वाकई ये अच्छे इंसान के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, क्लैपिंग करता हूँ। बिल्कुल जैसा उन्होंने बयान दिया है, अगर कोई समझने वाला हो तो बहुत बड़ी बात। बिल्कुल ऐसे ही है। काश उनके पास भी शेख साहब जैसा कोई उस्ताद होता, उनको भी ये बात समझाता और बताता। जिस आज आप आके उन्होंने मुझे समझाया और मैंने उनकी बात को फॉलो किया है। ये उन्होंने मुझे जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, और मैंने उनकी बात की तायीद की है कि उस्ताद जी आपने जो कहा है बिल्कुल ठीक है। एक बात जो है ना, देखें, गलती हो गई, पैसों के इतना बड़ा इशू नहीं था, बिल्कुल। पैसों का आप साहब ने अगर किया 10, 15, 20 लाख रुपए की बात कोई नहीं होती, 8-10 लाख की, बिल्कुल 2-3 लाख की तो बात भी कोई नहीं। बिल्कुल देखिए, ऐसे ही जो है। आदमी पूरा साल गुजर गया, हाँ जी, इनामी रकम उसने नहीं मांगी, जी, भाई है, कोई बात नहीं, बात तो फिर इस बात पे थोड़ा सा गिला तो आता है ना कि यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, किसी एक ने भी मैनू है फोन करके नहीं किया कि मेरे को पर्चा ले ला यार, आप तुम मुंसफियां सीधियां कर ले, बिल्कुल। किसी एक आदमी भी नहीं। वो तो देखे, मैं लाइव में ही चला रहा था, तो मुझे जहां तक आइडिया हो गया था, वो मुझे समझ आ गई थी कि अपना नईम भाई जो सा इतना
अपना जोशीले पन में आए हुए ना, उसकी वजह क्या है वो समझ आ ही जाती है इंसान को कि यार एक जब मुंसिफें डली हैं उनके पर्चे इनके तक नहीं पहुंचे। मकसद है सारे उधर सारे बैठे हुए थे ना, इन सारों ने मिलके कहा कोई बीच में एक बंदा इनका कोई समझदारी का सबूत दे देता, नहीं यार उन्होंने पर्चा भेज दियो, कोई गल नहीं। पर्चा भेजने में आप सब बैठे, मैं आप सब ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ पर्चा भेज देंगे, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ? कोई भी नहीं। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? हालांकि मैं आपको एक बात, हाजी गुज्जर साहब के जो कप की एंट्री 96 थी, जी इनके कप 106 थी, कितना सिर्फ 10 का फर्क आना था। बिल्कुल ऐसे ही 10 का ना, बिल्कुल तो 10 का तो आराम से बैठ के भी बात हो जानी थी, 10 की तो बात ही कोई नहीं थी। 10 बंदे तो यार एक एक बंदा हम करते हैं, हम 10 करते बंदे पूरे हो हैं, जाते बल्कि ज्यादा होते हैं, इससे ज्यादा होते हैं हैं। अक्सर कहा था। जितने मतलब के हाँ, टूर्नामेंट वाले हैं, बिल्कुल, एक एक बिल्कुल। बंदा करते ना, बिल्कुल। तो 10 वो भी पूरे हो जाते। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ, मिलजुल के अगर काम किया जाए तो किस चीज का हल नहीं है। मैं अब इंशाल्लाह ताला उस्ताद मुल्ला से भी मेरी आज मुलाकात है, अजहर साहब से भी मेरी बात हुई थी, उस्मान से भी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह ताला कल ये जो कि है ये वाइंड अप हो जाएगा, इंशाल्लाह। अल्लाह पाक खैर करे जी, मेरी भी दुआ यही है। हमारी देखिए कप्पों में ना रहे हमारे साथ, हमारी नहीं कप्पों में भी इंशाल्लाह ताला हमारी एंट्री ना ले, जिस बात में मैं एक मिनट जिस बात में मैं राइट पे खड़ा हूँ, आज भी खड़ा हूँ, कप्पों में हमारी एंट्री ना ले, जी ठीक है। जो अब बाजियां मेरे साथ तय है वो मेरे से उड़ानी पड़ेगी इनको, ठीक है। शेख साहब वो उड़नगे, हाँ इंशाल्लाह बनती है वो कैंसिल हो सकती है ना, कहते वो तो दोनों रजामंदी देखिए से जी, हम cancel होती पूरी है। कोशिश ये करेंगे जब दूसरी पार्टियां भी आ जाएंगी ना, मुझे पता है कि आप साहब का भी दिल बड़ा जबरदस्त बिल्कुल, है, बिल्कुल। इंशाल्लाह ये पैचअप हो जाएगा। और कपों में भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से हम कोशिश करेंगे कपों में भी उड़े, आप इंशाल्लाह। साहब के भी उनके भी, इंशाल्लाह ठीक जी, है। ये इंशाल्लाह। जो मिस हाइट हुई है ना, इसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको क्लियर करें। इंशाल्लाह जी। हम जी शेख साहब। कोशिश करेंगे आफा साहब को भी उस तरफ ले आएंगे ताकि लाहौर का हुस्न कायम हो बिल्कुल। कबूतर परवरी के हवाले से। जी। और जो कबूतर परवरदार लाहौर को यूनिवर्सिटी कहते हैं ना, वो उस तरह के इकदाम करने पड़ते हैं तब यूनिवर्सिटी बनेगी है। बिल्कुल उम्मीद है, बहुत सारे कप च हाँ जी उम्मीद है सारे लोग हाफिज साहब के कप में हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह, और हाफिज साहब भी कोशिश इंशाल्लाह हम भी करेंगे कि ये कप शो की बेहतरी के लिए एक अहम इकदाम साबित हो। आमीन जी आमीन। सारे काफी जोन से ना ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਹਾਵ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਰਾਣਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। चले जी, इसके अलावा कुछ और कुछ नहीं? चले जी, बहुत शुक्रिया। एक मिनट जरा जी, अपना देखा सुना आपने सब, जो चीजें हैं वो सामने वाजिया हो गई हैं कि जी क्या इख्तलाफात थे, क्यों इस बात तक जो सा ये मुकाम अपना ये बात जो सी वो पहुंची है। तो बाकी मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको जो सा वो मिलजुल के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए और मिलजुल के जो सा जी अपना कप उड़ाने की भी तौफीक अता फरमाए और शौक हमारा बेहतरी की तरफ जाए। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि यार हम एक गुलदस्ते की तरह, अगर गुलदस्ते में से फूल बिखरे पड़े हो ना तो वो अच्छे नहीं लगते। जब गुलदस्ते में सजे हो ना, इकट्ठे साथ मिले हो, तो फिर ही वो एक कहते ना फपदे नहीं यार, वही चीज बन जाओ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਵਾਇਆ ਕਰੋ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसी आया तरह कि ही। उधर के कंडे पीछे हाँ, नहीं है, अच्छी नहीं बात है। माशाल्लाह से अपना हाफिज भाई ने जो इकदाम किया है, अल्लाह पाक इनको ऐसे जो सा जी अपना तरक्की देता रहे। और आप सब भाइयों को भी दुआओं में याद रखिएगा, अगर कोई गलती गुस्ताखी होगी हो तो उस चीज के लिए माजरत चाहेंगे जी। अल्लाह हाफिज। यार एक तो